Assalamualaikum everyone, myself Tuba Ahmed and this is Ishan Atik YouTube channel. So I am here to show you how we can manage our portfolio. For this I will use two methods. First one is Google Finance and second is Google Spreadsheet. So for this simply go to Google Finance. This interface is open. Here you can see various companies stocks, their prices, their current stock prices and financial news also. अगर हम यहाँ नीचे disclaimer पर जानते हैं तो you can see continent stock markets. Here you can see National Stock Exchange of India NSE, Hong Kong Stock Exchange market, but unfortunately Pakistan does not lie in this Google Finance. So Pakistan Stock Exchange यहाँ पर नहीं है. Simply go back to home where we have to make our portfolio. Go to new portfolio, name it. I simply name it my portfolio, save it. That's the dashboard open. Add new investment, add investment. So here we have to enter our stock, company's stock. For example, I had purchased Apple stocks, Apple company stocks, 10 stocks I had purchased. On which date I had purchased? On 30 September 2021. On 30 September 2021, I had purchased Apple stocks, total 10 stocks, one stock price is 141.50 at that time. Save it. By saving it, you can see your total portfolio amount. Day again, you see here portfolio trend. एंड नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ एप्पल का जो आपने शेयर परचेज किए थे 10 एट द रेट ऑफ यहाँ पर एट द रेट ऑफ 141.50 ऑन डेट है 30 सितंबर 2021 ये हमारे पास आ जाएगा. और जितने भी हमने स्टॉक्स परचेज किए थे पास में वो सब हम यहाँ पर इंटर करेंगे. गो टू इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल आई हैड बाउट टेस्ला शेयर्स, so I enter it. I bought 12 shares of Tesla on same day 30 September 2021 at the rate of 258.49 per share. Save it. Then you can see your portfolio amount has increases. Day again has also shows here. There you can see your Apple and Tesla shares यहाँ पर आपके portfolio में आ गए. जितने भी shares purchase किए मज़ीद ऐड करूँ. So I purchased Reliance Industries shares and Tesla Industries shares. रिलायंस के मैंने 8 शेयर्स परचेज किए हैं, टेस्ला के मैंने 12 शेयर्स परचेज किए हैं. टोटल मैंने जो है 4 कंपनीज के किए हैं, जिसमें से रिलायंस जो है वो इंडियन कंपनी है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर ट्रेड होती है. रिमेनिंग 3 एप्पल, मेटा एंड टेस्ला जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर जो है ये ट्रेड होती है. उसका जो कोड है वो है NASDAQ और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो कोड है वो है NSE. So these are some shares which I had bought on 30 September 2021. Now if I have to check its current price, I can easily trace it. Here this is over my total portfolio amount. Here you can see its trend. In 1 month it is decreasing, my portfolio is decreasing, shares prices are decreasing, or if we see 6 months it is increasing. So we can see here some trends. If we click on individual company, for example Apple I clicked. So यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एप्पल का डे गेन शो हो रहा है. डे गेन एप्पल का 25.80 है. एप्पल जो है 21.4% हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है. उसके आज करंट प्राइस है वो उसके शो करें. हमने जो है 2 साल पहले प्राइस पे लिया था 2021 का, वो दूसरे थे, और ये करंट प्राइस है आज के प्राइस है. इफ आई हैव टू सी अनदर कंपनी परफॉर्मेंस, आई कैन सी देयर. जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेस्ला की परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ. टेस्ला का जो आज के जो शेयर है, आज शेयर की जो प्राइस है वो 260.53 और वो 37.8% हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है. डे गेन इशू कर रहा है. ओके, सिंपली गो बैक एंड चेक अनदर कंपनी परफॉर्मेंस. दिस इज हाउ वी कैन डू थ्रू गूगल फाइनेंस, हाउ वी कैन मैनेज अवर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस. हमने जितने भी शेयर्स परचेज किए हैं वो यहाँ पर हम जो है इंटर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में आकर. अगर इन्हीं में हमने जो है इन्हीं कंपनीज में कुछ शेयर्स का इजाफा किया है और मजीद परचेज किए हैं तो यहाँ पर हम जो है इसको एडिट भी कर सकते हैं. मजीद जो है ना हम ऐड कर सकते हैं जिस भी डेट को आपने परचेज किया है. Now I'm going to show you how we can manage our portfolio through Google Sheet. Simply click on Google Sheets. Here we have, आसानी के लिए मैंने यहाँ एक स्प्रेडशीट बना के रखी है जिसमें मैंने वही कंपनीज की हैं जो मैंने गूगल फाइनेंस पर ली थी. एप्पल, मेटा, रिलायंस, टेस्ला एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी वही है. 10 एप्पल के 10, मेटा के 10, रिलायंस के 10, टेस्ला के 12. तो हमें देखना है कि इसकी बाइंग डेट और बाइंग प्राइस. बाइंग डेट हमें मालूम है 30 सितंबर 2021 थी. उस डेट पर इन शेयर्स की क्या प्राइस थी ये हमें ऑटोमेटिकली चाहिए, हमें सर्च नहीं करना पड़े, हमें खुद ही यहाँ पर आ जाए. तो वो हम किस तरह से जो है निकाल सकते हैं. उसके लिए हमारे पास गूगल फाइनेंस का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है. गूगल फाइनेंस, हमने स्टॉक टिकर डालना है, प्राइस और डेट जिस दिन हमने परचेज किया. स्टॉक टिकर वो होता है, स्टॉक टिकर मतलब कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर किस नाम से ट्रेड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर वो ट्रेड होती है. उसका जो कोड है वो है NASDAQ. ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का कोड. तो एप्पल जो है AAPL के नाम से स्टॉक एक्सचेंज पर जो है ट्रेड होती है. मेटा इस नाम से होती है, टेस्ला इस नाम से होती है. रिलायंस जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है NSE, तो वो जो है रिलायंस के नाम से अपनी स्टॉक कंपनी पर जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर ट्रेड होती है. अब हमने इसकी बाइंग डेट से हमने जो है इसकी बाइंग प्राइस निकाल ली है. ओके, एप्पल के मैंने शेयर प्राइस निकाली भी है, मैंने यहाँ डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है. हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे गूगल फाइनेंस F13 हम सेल नंबर यहाँ पर जो है पुट करेंगे. F13 क्या है, यू कैन सी हियर F13 पर हमने स्टॉक टिकर डाला AAPL.
कॉमा प्राइस, प्राइस को ऑटोमेटिकली नेट से जो है लेगा, उस दिन क्या प्राइस की डेट जिस दिन हमने जो है इसको परचेज किया था, तो वो हमने जो है डेट यहाँ पे डाल दी। गूगल फाइनेंस ब्रैकेट में सब कुछ डाल के ब्रैकेट क्लोज करके जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास डेट और टाइम प्लस हमारे पास बाइंग प्राइस भी उस डेट पे क्या थी वो हमारे पास आ जाएगी। तो उस वक्त थी 141.5 एप्पल के एक स्टॉक की प्राइस थी, इसको हमने कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर दिया। अब सेकंड अगर मुझे टेस्ला देखना है तो मैंने क्योंकि डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है तो मुझे बार बार फॉर्मूला नहीं पुट करना पड़ेगा, मैं टेस्ला पर जाऊँगी। ठीक है, टेस्ला का इसने जो है प्राइस बता दी, डेट पे क्या थी प्राइस, हमने यहाँ सिंपली कॉपी किया, यहाँ टेस्ला पे आकर परचेज कर दिया। सेम इसी तरह मैंने बाकी दोनों कंपनीज का भी निकाली, रिलायंस और मेटा का भी जो है शेयर बाइंग प्राइसेस हमने निकाल ली। सिंपली हमने बस ये गूगल फाइनेंस का वाला फॉर्मूला पुट किया था, उसमें स्टॉक टिकर प्राइस और डेट आनी थी और हमारे पास तमाम प्राइसेस जो है उस दिन की हमारे पास शो हो गई। नेक्स्ट कॉलम था नंबर ऑफ शेयर्स, वो हमने मैनुअली इंटर करना है कितने शेयर्स परचेज किया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी एक शेयर अगर इतने प्राइस का था एप्पल का और मेटा का, इस तरह से इतने एक शेयर के प्राइस थे, तो टोटल हमने कितनी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर दी इन शेयर्स पर। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, इक्वल्स टू करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय बाइंग प्राइस, दिस इज सिंपल मैथ्स फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय बाइंग प्राइस। देन ये हमारे पास मेटा के आगे इसी को हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे तमाम शेयर्स की प्राइस आ जाएगी। यहाँ टोटल कर लिया हमने, सम किया था, तो ये सम होकर टोटल हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है किस दिन, हमने 30 सितंबर 2021 को इतनी हमने इन शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट की है। नाउ टुडे इज 7 अक्टूबर 2023, तो 7 अक्टूबर 2023 को इन शेयर्स की क्या प्राइस है वो हमें जाननी है। सिंपली हम जो है गूगल पर लिखकर गूगल फाइनेंस पर भी हम चेक कर सकते हैं कि आज इसकी क्या प्राइस है, लेकिन अगर हमें गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू करना है तो वो हम कैसे देखें कि आज के दिन पर इन शेयर्स की क्या प्राइस है। इसके लिए हम गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गूगल फाइनेंस ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ लिखा हुआ है गूगल फाइनेंस ब्रैकेट ओपन, जो है हम इसमें जो है स्टॉक मार्केट का नाम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, तो NASDAQ उसका कोड है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर हमने डाला। कॉलन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड C5 पर हमारे पास है स्टॉक टिकर, वो ऑटो जो है डिटेक्ट कर लेगा, APL एप्पल का है तो वो C5 वाला सेल नंबर तो ले लेगा। कॉमा प्राइस, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने प्राइस ली तो इंटरनेट से करंट प्राइस लेगा, इसको हमने जब इंटर किया तो हमारे पास करंट शेयर प्राइस आ जाएगी एप्पल की आज के डेट पर क्या है। सिंपली हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास बाकी शेयर्स की भी करंट प्राइस आ जाएगी। ये है मेटा की करंट प्राइस, NASDAQ कॉलन इन्वर्टेड कॉमर्स एंड C6, उसमें C6 मेटा का है सेल नंबर, तो स्टॉक टिकर का और प्राइस तो मेटा की आ गई। अब रिलायंस के अंदर जो है एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट का जो कोड है वो गलत डला हुआ है। NASDAQ तो जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का कोड है और रिलायंस है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, तो यहाँ आएगा NSC, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो कोड है, जो नाम है वो है NSC, तो हमने डाल के इंटर किया, बस इतनी सी चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है रिलायंस की करंट प्राइस भी आ गई। तो इस तरह से हम करंट प्राइस निकाल सकते हैं सिंपली इस फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट हमने देखी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, जब हमने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था तो जो है इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यूज़ हुई थी। अब जो है इन जो शेयर्स की जो है क्या प्राइसेस हो गई हैं, या हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये हम किस तरह से चेक करेंगे। मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे, सिंपली है इक्वल्स टू करेंगे करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अबाउट, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अबाउट, इंटर, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई। यहाँ आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्ट हमने किया था तो इतना हमने इन्वेस्ट किया था, अब जो शेयर्स की प्राइस है वो इतनी है, तो बीच का जितना भी डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट है ज़्यादा है तो प्रॉफिट और नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस हुआ। एप्पल के केस में देखें जब हमने इन्वेस्ट किया था तो अमाउंट हमारी बनी थी 1415 अमाउंट, है ना, इतने हमने 10 शेयर्स परचेज किए थे। लेकिन अब जो है आज जो है 7 अक्टूबर 2023 को इसके शेयर की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ कम थी अब यहाँ बढ़ चुकी है, इसीलिए मार्केट वैल्यू भी इसकी जो है ये इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, यानी जो बीच में से जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा प्रॉफिट। यहाँ हम टेस्ला मेटा में देखेंगे, देखिए मेटा में जो है ना शेयर्स की प्राइस यहाँ पर कम हुई है, पहले 339.29 थी, अब जो है 315 हो गई है, तो मार्केट वैल्यू उसकी यानी कि डिक्रीज हो गई है। टोटल जो है मार्केट वैल्यू का सम आ गया है, पहले जो है ज़्यादा था हमारा पोर्टफोलियो, जब हमने जो है इन्वेस्ट किया था तो इतने का हमारा इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जो है 2 साल बाद जो है इसकी अमाउंट जो है वैल्यूज़ कुछ शेयर्स की कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो का अमाउंट जो है डिक्रीज दिखा है। तो प्रॉफिट देखना है तो मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। एप्पल में तो प्रॉफिट आया, मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्रॉफिट आया, बट मेटा में लॉस हुआ, इसी को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं रिलायंस में भी हमें लॉस हुआ है, शेयर की प्राइसेस जो है यहाँ पर देखें शेयर की प्राइसेस जो है कम हुई हैं रिलायंस में भी, और टेस्ला में भी हमें प्रॉफिट हुआ है। मेटा एंड रिलायंस में हमें जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। अच्छा, अब अगर हमें ग्रोथ देखनी है तो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये ग्रोथ यानी कि कितनी परसेंटेज से जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुए हमारी शेयर की प्राइसेस को इंटर किया, ट्रैक किया, तो ये ग्रोथ सबकी शो गई। एप्पल जो है 25.43% से ग्रो हुआ है। सो इफ आई हैव टू सी इन्वेस्टमेंट डेज के कितने इन्वेस्टमेंट डेज हो चुके हैं हमें परचेज किए हुए, तो सिंपली यू कैन राइट इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस D6 पर है हमारे पास बाइंग डेट, टुडे माइनस D6 करेंगे तो हमारे पास आज के दिन पर यानी 7 अक्टूबर 2023 को, और जब हमने परचेज किया था तब से अब तक लेकर कितने डेज हो चुके हैं, उसको ड्रैग करेंगे हमारे पास 7 तमाम डेज आ गए, सबके सेम डेज आ रहे हैं क्योंकि हमने सेम डे को परचेज किया था। बस रिलायंस में पॉइंट का फर्क आ रहा है क्योंकि रिलायंस में इंडियन कंपनी, इंडियन में जो है थोड़ा सा टाइम का, इंडिया और अमेरिका के टाइम में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए पॉइंट का फर्क आ रहा है। अब अगर हमें ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या बन रहा है, यानी ट्रेंड मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 ईयर या 2 ईयर्स की, क्योंकि अभी तक हमें 2 ईयर्स ही हुए, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास स्पार्क लाइन का। स्पार्क लाइन यानी कि ट्रेंड को ही कहते हैं। स्पार्क लाइन इक्वल्स टू ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ पर गूगल फाइनेंस ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने स्टॉक मार्केट का नाम डाला है, NASDAQ अमेरिका की है, फिर इन्वर्ट कॉलन और फिर एंड C5 पर हमारे पास है स्टॉक टिकट AAPL एप्पल का, तो C5
कॉमा प्राइस कॉमा टुडे माइनस 365 कॉमा टुडे। ये पूरा जो है स्पार्क लाइन का फॉर्मूला है। टुडे माइनस 365 मतलब 1 ईयर का ट्रेंड शो करेगा। हमें 2 ईयर्स का चाहिए तो टुडे माइनस 730 करेंगे तो 2 ईयर्स का जाएगा। पूरा ये फॉर्मूला हम डालेंगे और इक्वल्स टू करके इसको इंटर। तो ये हमारे पास 1 ईयर का ट्रेंड आ गया एप्पल का। सिमिलरली इस तरह से हमारे पास बाकी कंपनीज का भी 1 ईयर का ट्रेंड आ गया कि एक साल में स्टॉक प्राइसेस कितना ऊपर गई हैं कितना नीचे गई हैं। यहाँ पर रिलायंस में एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट अलग तरीके यहाँ पर आएगा NSE इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे इक्वल्स टू ये रिलायंस का आ गया 1 ईयर का ट्रेंड। सिमिलरली 2 ईयर्स का ट्रेंड निकालने के लिए टुडे माइनस 730, 1 ईयर के लिए टुडे माइनस 360 था, 2 ईयर्स के लिए टुडे माइनस 730 और इंटर। तो ये 2 ईयर्स का ट्रेंड इसने दिखा दिया। यहाँ भी सिंपल NSE और ये रिलायंस का 2 ईयर्स का ट्रेंड शो। सो सिंपली हम गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू भी अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या फिर हम गूगल फाइनेंस के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने कोई मजीद शेयर्स परचेज किए हैं तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। यहाँ पर मजीद हम शेयर्स इंटर कर देंगे जिस डेट को परचेज किए हैं तो उस तरह से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होता जाएगा या फिर हम गूगल फाइनेंस पे भी सिंपली इस तरह से यहाँ पर आके एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।